Good evening, everyone. I'm your host, Hari Nair. A warm welcome to our webinar, Decoding Market Trends, a practical guide to smarter trading through technical analysis. We are delighted to have you join with us today. Just to give you a small intro about Ashika. Ashika Group is one of the leading diversified financial services organizations with over 30 years of legacy in empowering investors and institutions across the country. Since its inception in 1994, Ashika has grown from humble beginning in Kolkata to a nationwide presence, championing financial well-being and creating meaningful impact over 125,000 clients through a spectrum of services including retail and institutional broking, investment banking, global family office services, research insights, and more. At the heart of our ecosystem is Ashika Retail Broking, built to make investing seamless and accessible. With platforms like Dhanush, investors now can trade and invest across multiple asset classes, all backed by expert research, competitive pricing, and with great customer-centric support. Now, without further delay, join me in welcoming our speaker for today, Mr. Ravinder V. Rao. Mr. Ravinder brings over 19 years of experience in financial markets across equities, commodities, and currencies. He has held senior leadership roles in research at top institutions such as Kotak Securities, Motilal Oswal, and Anand Rathi. He is a founder of Arthavriksha Financial Services Private Limited and a visiting faculty at FinX Institute, formerly BSc Institute, where he trains professionals in technical analysis, derivatives, and market behavior. Mr. Ravindra is widely recognized for his expertise in technical analysis, having conducted numerous corporate programs, academic sessions, and professional workshops. He also mentors students and market enthusiasts aspiring to build careers in financial markets. During his corporate tenure, Ravinder has been featured on major business news channels, including CNBC, ET Now, and Z Business, sharing insights on commodities, market trends, and trading strategies. He holds an MBA in finance and is a chartered market technician, CMT USA, a certified financial technician, CFTE USA, and EPAT, certified in algorithmic trading from ContInsti. So, without further ado, let me hand over this platform to our speaker, Mr. Ravinder B. Rao, and let's hear from him. Thank you, Hari. That was a wonderful introduction. And I'd like to thank Ashika Group, you and Rahul for giving me this opportunity to interact with participants and share my knowledge about the markets. As Hari has already mentioned about me, now I have become an entrepreneur and I've started my own firm in the name of Arthabrooks Financial Services Private Limited. One of the main aim of starting this venture was to mentor upcoming traders. Because what I have seen in last 20 years of my career is that traders, many of the young traders, they just enter into trading. This has happened especially after COVID, where we have seen a lot of demat accounts being opened and youth getting into capital markets without proper knowledge. And a lot of influencers on YouTube, we have seen giving a lot of courses, all those stuff. So we thought, why not we having an experience of 20 years and we knowing the market in and out, why not we should come and teach the youth, today's youth, so that they can take an informed decision when they trade. So this was one of the main agenda being behind this venture that we started. So without wasting much of time, we'll start with the session. Um, what we will do is we will be first let me share my screen. Um, Mr. Ravinder, just a small request. yeah, Just want to have the entire sessions in a mix of Hindi and English so that it benefits both sure, the audience. Yeah. sure. I'll do that. I'll do that. My screens are visible, Hari. Uh, So no, it has not yet started though. Yeah, it's visible right now. my presentation is visible, right? And the charts are Yes, visible. yes, both are visible. Great, great. Okay. So um, So today I'm going to share. I would say this is more of a objective kind of a training because I don't believe in much explaining theory because what happens it makes it very boring.
Second, when you do some kind of an experiential training and when you show live charts, that helps individuals to understand the concept more clearly. So my entire session today will be more of an experiential training, what I have experienced in my last 20 years, what some of the strategies that I look at and I also trade. And so it will be more of an objective session. So, as the name goes, decoding market trends, a practical guide to smarter trading through technical analysis. So, I'll be teaching some of the price action concepts, which will help the participants who have joined today to immediately use this. So they can understand the concept, just go through some of the literature on that, and they can immediately test that on a market. But I would suggest don't do it directly with your real money. I would suggest you take some time before getting into real trading. I would suggest you do a book trading and then you can start your own trading. So this will help in overall understanding the market. Before starting, I would like to give a small disclaimer, as this content is only for educational and information purpose, and it is important that one does his own analysis before taking any kind of personal investments, and you should take a independent financial advice, or take an independent research and verify the information, and then only you should trade. And I might be using some of the company's name in this presentation, which is purely from a example point of view, and there is no recommendation or advice to buy or sell any stock or any commodity. And as I mentioned, it does the entire presentation. In the entire presentation, I might be using different examples, but that does not constitute a recommendation. Okay, so this is my disclaimer before the start of this presentation. So I would like to start. See, we had asked a few questions to the participants, and they have given. We have put some of the questions in this presentation, wherein you can see that it is more or less questions that normally comes to the trader's mind, like how I can learn technical analysis for short-term trading, how to identify the real time buy and sell, entry and exits, what are best swing trading system setups, how to identify stocks from a long-term perspective, whether this course, I would say a presentation is for absolute beginners. Then how to use stop loss effectively, what are the trend reversals, how to use different indicators like RSI, and what are the trading mistakes that traders normally do and how to avoid them. So what I've done is, based on these questions, I have prepared this entire presentation, wherein the entire structure will be revolving around these questions, because what I felt was whatever questions have been highlighted, this in itself is will cover the entire technical analysis part. Again, technical analysis is something which is a big ocean, and even after 20 years of experience, I'm still learning technical analysis, because market teaches you every day. Okay, so you have to learn every day in the market, and then you have to apply those learning techniques. So I'll try my best to make you guys understand. थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट आई थिंक यू विल गेट मोर और लेस द फीलर कि आपको ट्रेडिंग मार्केट में कैसे करना है. एंड एज हरी मेंशनड, मैं थोड़ा बहुत हिंदी में भी बात करूंगा. आई बी यूजिंग इंग्लिश, सो लिटिल बिट इंग्लिश एंड लिटिल बिट हिंदी. So the today's webinar would be structured around, first, how to identify the trend. Okay, so before getting into any kind of trading, one should first identify the trend. आपको अगर ट्रेंड समझ में आ गया ना, तो आप कोई भी स्टॉक पे, कोई भी कमोडिटी पे, या कोई भी एसेट क्लास पे आप ट्रेड कर सकते हो. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर फर्स्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर trading journey. Then there will be different setups that you can trade, that is swing trading setups. I will show you how long term stock selection you can do using charts. What are different stop loss and risk management systems which you need to use when you are trading, because that is one of the most important part, I would say.
ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिस्क मैनेज करना सीख लिया तो आपका आधा काम हो गया समझ लीजिए। उसके बाद तो आपको जो आप डिसिप्लिन वैसे ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको पैसे बनने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं। सो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर्स, ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रेकआउट बहुत बार ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, जहाँ जहाँ पर मेरे को लगता है कि अभी ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा, बट देन दैट ब्रेकआउट टर्न्स टू बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये चीजों को कैसे अवॉइड करना है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ब्रेकआउट विद अ हाई प्रिसिशन। ऐसा भी होता है कि कभी कभी ब्रेकआउट होने के बाद, कन्विक्शन आने के बाद भी प्राइसेस नीचे आते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम जब भी ब्रेकआउट 100% कन्विक्शन ब्रेकआउट हो उसके बाद प्राइसेस ऊपर ही जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट कम डाउन ऑल्सो। सो नथिंग इज श्योर। Okay, you talk about technical analysis, fundamental analysis, quantitative analysis. These are all science. Okay, so ये आपको आपका जो probability है of success in the market that will increase. बट कोई भी आपको अगर बोलता है कि मेरा 90% स्ट्राइक रेशियो है, मेरा 80% स्ट्राइक रेशियो है, आई थिंक दोज आर फॉल्स क्लेम्स। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने अच्छा डिसिप्लिन रखा, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रखा, आपको अगर 60% भी स्ट्राइक रेट आ जाता है, स्टिल यू कैन मेक मनी। और अगर आपने 1:5 का, 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रखा, तो आई थिंक इवन 30 by 40% ऑफ द स्ट्राइक रेट कैन मेक यू मनी। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। सो डोंट गो बाय द नोशन कि अगर मैंने 80% स्ट्राइक रेट किया तो ही मैं पैसा बना पाऊंगा। आई थिंक इट इज ऑल डिसिप्लिन। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग सेटअप आप कैसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे कर सकते हो। देन आई कम टू द 7 मिस्टेक्स। वैसे तो बहुत सारे मिस्टेक्स है, बट आई हैव आइडेंटिफाइड टॉप 7 मिस्टेक्स विच नॉर्मली ट्रेडर्स डू। ये मैंने भी किया है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। और ये मिस्टेक्स होते रहता है। आई वुड से कि नो बडी कैन अवॉइड दैट, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग देर इज ऑलवेज अ इमोशनल फैक्टर जो हमें कोई भी चीज करने से रोकता है। सो वो मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है। एंड देन वी विल गो फॉर Q&A सेशन। सो जैसे मैंने बताया कि जो सबसे पहले आपको करना है वो है आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ओके, दैट इज द वेरी सिंपल रूल। और आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेंड के साथ चलना। ओके, सो ट्रेंड नॉर्मली एक कहावत कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जैसे ट्रेंड जा रहा है आपको उसके साथ जाना है, आपको कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। आई विल शेयर एन एग्जाम्पल। ये बहुत बारी मेरे साथ हुआ है जहाँ पे व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट, क्लाइंट मेरे को बोलते हैं, अरे रवि निफ्टी हाई पे पहुंच गया है, क्या ना क्या हम इसे बेच सकते हैं? क्यों बेचना है? व्हेन द ट्रेंड इज अप यू शुड गो फॉर अ बाय, व्हाई यू वांट टू गो फॉर अ सेल? सो ये जो मेंटालिटी है कि अभी ये लेवल पे आ गया, कैन वी गो फॉर अ सेल, अनटिल एंड अनलेस आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखता तब तक आपको ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जाना है? राइट। अभी निफ्टी करेंटली थोड़ा सा अप ट्रेंड में है, इट हैज टेकन अ डबल टॉप रेजिस्टेंस और मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, ट्रेंड ऊपर है बट उसको बीट करने जाएंगे एंड दे विल गो फॉर अ शॉर्ट, विच आई थिंक इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। ट्रेंड जो आपको दिखा रहा है आपको वही अ, वैसे ही आपको ट्रेड करना है। सो द मोस्ट बैड ट्रेड्स हैपन बिकॉज पीपल बाय व्हेन द ट्रेंड इज वीक और सेल व्हेन द बायर्स आर स्टेपिंग इन। मार्केट गिर रहा है तभी लोग डर जाएंगे और या तो शॉर्ट करेंगे या तो एग्जिट हो जाएंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीड आ जाता है, जैसे कि सिल्वर में हुआ था रिसेंटली। सिल्वर वेंट अप टू 1,50,000, 1,60,000। मेरे को मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया वेर शी टोल्ड मी कि सर मेरे को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, मैं करूँ ये लेवल पे? नाउ इट इज ऑलरेडी एट द हाई, प्रीमियम्स काफी बड़े हुए हैं, आपको यहाँ पे क्यों बाय करना है? एंड देयर वाज अ रेजिस्टेंस देयर। सो आई टोल्ड वेट फॉर पुल बैक, देन यू कैन गो फॉर अ बाय। वहां से 20-30, वहां से 20-30,000 नीचे आ गया और वहां पे उनको फिर से एंट्री मिल गया। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर ट्रेडिंग। फोमो नहीं आना चाहिए जहां पे आपको लग रहा है कि मैं मिस आउट हो जाऊंगी कोई ट्रेड से। आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग वे टू ट्रेड। आई थिंक पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। सो दैट्स व्हाई वी से ट्रेड विद द ट्रेंड। ओके, नाउ आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हो? सो एकदम बेसिक, अगेन दिस इज वेरी बेसिक।
आपको देखना है कि मार्केट में हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, या फिर लोअर हाइज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? विद हायर हाई हायर लो, विच इज अ बुलिश इंडिकेशन, दैट इज अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या होता है? लोअर हाइज प्लस लोअर लोज। सो मैं आपको ये एग्जैक्टली exactly चार्ट पे दिखाता हूँ। सो हम लेट अस टेक निफ्टी का चार्ट। सो वील टेक द वीकली चार्ट। जब भी मैं बोलता हूँ हायर हाई एंड हायर लोस, तो आप देखिए यहाँ पे निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, विच वाज अराउंड अक्टूबर 2022। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। ये मैं आपको आगे के सेशन में दिखाऊंगा, आगे के स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे करना है। जस्ट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट इसे एक ट्रेंड, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन समझ के लीजिए। सो यहाँ पे प्राइसेस ने ब्रेकआउट दिया। ओके, एंड इसका लो कहाँ पे था? इसका लो हुआ समवेयर नियर 15,178, पहला लो। उसके बाद इसने यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया विच वाज क्लोज टू 16,000। इफ आई टेक प्रिसाइज लेवल, इट इज क्लोज टू 16,747। ओके, तो ये एक लो बना, फिर एक नया हाई बना। इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक हाई बना, फिर एक लो बना, विच वॉज हायर देन द प्रीवियस लो। फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना। ये लो वेरी क्लोज टू द प्रीवियस लो, बट इट डिड नॉट ब्रीच। फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना, फिर अगेन इफ यू सी, यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे एक हाई बना, फिर यहाँ पे एक लो बना। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज अ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है? हायर हाइज बनते हैं। सो दिस यू कैन सी, दीज आर हायर हाइज एंड दीज आर हायर लोस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ अप ट्रेंड। अभी जब भी अप ट्रेंड रहता है और आपको ब्रेकआउट दिखता है यहाँ पे, तो दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू एंटर द मार्केट। अभी यहाँ पे देखिए, आप प्राइसेस नीचे ही जा रहे थे, बट जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यू कुड हैव एंटर्ड हियर एंड देन यू कैन राइड द ट्रेंड। ओके, सिमिलरली अगर मैं बेरिश नीचे का अगर मूव देखूं, तो आप यहाँ पे देखिए, इफ यू सी दिस, यहाँ पे एक हाई बना, उसके बाद एक लो बना, देन एक हाई बना विच वॉज अगेन लोअर टू द प्रीवियस हाई, बट एक लो बना जो कि प्रीवियस लो से नीचे था। उसके बाद फिर एक हाई बना जो अगेन इट वॉज लोअर टू द प्रीवियस हाई, एंड देन इट मेड अ न्यू लो, अगेन इट मेड अ हाई, अगेन इट मेड अ। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे इट वॉज मेकिंग अ इट वॉज मेकिंग अ लोअर लो पैटर्न एंड लोअर हाई पैटर्न। ओके, सो ये लोअर हाई पैटर्न है। ये दिस इज व्हाट इज अ बेरिश सिग्नल, दिस इज व्हाट इज अ बुलिश सिग्नल। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द बुलिश सिग्नल। तो यहाँ पे आपका एक हायर हाई और हायर लो पैटर्न बन गया, विच इंडिकेटेड दैट दिस इज बुलिश मूव। उसके बाद आपको क्या देखना है? उसके बाद आपको दो मूविंग एवरेज लगाना। सो इफ यू सी, दिस इज द येलो लाइन इज अ 20-day मूविंग एवरेज एंड 50 लाइन इज द सॉरी, ब्लू लाइन इज द 50-day मूविंग एवरेज। तो जो नियर टर्म मूविंग एवरेज है, दैट इज 20-day, इफ इट इज द अबाउ द 50-day मूविंग एवरेज, इट इज अ बुलिश सिग्नल, और वाइसा वर्सा। अगर 20-day 50-day के नीचे है, इट इज अ bearish signal. So if you look at this point, if 20 is uh, above the 50 moving average, it's a uptrend confirmation. If 20 is below 50, it's a downtrend confirmation. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट आया ये पॉइंट पे, एंड इट वाज मेकिंग अ हायर हाई। ओके, सो मेरा फर्स्ट रूल इज डन। Second rule, my 20-day moving average should be above the 50-day moving average. So if you see, my 20-day is, that is yellow line is above the 50-day. So मेरा दो rule satisfy हो। My third rule says that RSI क्या है? RSI is nothing but a momentum indicator. तो ये दिखाता है कि आपके जो ट्रेंड में कितना मोमेंटम है। इफ इट इज अबव 50, इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज बिलो 50, इट इज नेगेटिव। सो RSI अगर आप यहाँ पे देखिए, ये नीचे चार्ट में जो नीचे बना हुआ है, यहाँ पे तीन डॉटेड लाइंस है। जो ब्लू लाइन है दैट इज 70, जो ग्रे लाइन है दैट इज 50, एंड रेड लाइन इज 30। सो प्राइस जब भी 50 के ऊपर रहता है, इट इज अ बुलिश सिग्नल।
प्राइस जब भी 50 के नीचे रहता है, इट इज अ बेयरिश सिग्नल। मतलब आप कोई एक इंडिकेटर देख के यू कैन नॉट टेक अ ट्रेड, इट शुड कॉम्प्लीमेंट अदर इंडिकेटर्स एज वेल। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे मेरे को मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन मिला। अभी आरएसआई क्या बोलता है? आरएसआई बोलता है कि अगर 50 के ऊपर है तो इट इज सपोर्टिंग द लॉन्ग, 50 के नीचे है इट इज सपोर्टिंग द शॉर्ट। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे आरएसआई कहाँ पे था? आरएसआई वाज अबव 50। if you see here, RSI 50 के ऊपर था, correct? So when RSI is above 50, when it is making a higher high, and you also have a breakout confirmation, plus the moving average 20 is above the 50-day moving average, that gives you a buying signal. Okay, so this is a perfect setup for buying. तो यहाँ पे आपने बाई किया, उसके बाद आपको उसको राइड कैसे करना है? सी, देयर कैन बी 2-3 डिफरेंट वेज ऑफ एग्जिटिंग दिस ट्रेड। एक तो ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, वो स्टॉप लॉस का आप 1:2 या 1:3 का रेशियो रख के आप एग्जिट कीजिए। सेकेंड, यू कैन कीप अ परसेंटेज कि मेरे को अगर 10% मिल गया, 15% का मूव मिल गया, आई एग्जिट द ट्रेड। और अनदर थिंग टू डू इज यू कैन राइड द ट्रेड। ओके, सो अगर आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है, ये सपोज निफ्टी के जगह पे कोई अगर स्टॉक है, विच आई विल शो यू अदर एग्जांपल्स आल्सो। तो अगर आपने स्टॉक लिया हुआ है, तो स्टॉक में क्या है कि यू कैन राइड दैट स्टॉक। ओके, सो यहाँ पे आप राइड कैसे करोगे? आपने, जब तक आपका प्रीवियस लो ब्रीच नहीं होता है, और जब तक प्राइस ये जो 50-डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे नहीं आता है, तब तक यू कैन बी इन द ट्रेड। सो हमने ट्रेड करीबन से 18,000 के आसपास लिया। वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ निफ्टी अराउंड 18,000, वी केप्ट अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,700। ओके, देन इट वेंट अप, यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया। तो हमने जो हमारा स्टॉप लॉस था वो यहाँ से स्टॉप लॉस हटा के यहाँ पे लेके आया। नाउ व्हेन इट मेड अ हायर हाई, हायर लो, फिर ये जब भी ऊपर गया तो हमने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आया। ओके, सो वी ट्रेल दिस स्टॉप लॉस हियर। ओके, नाउ इट मेड अ न्यू हाई एंड देन अ न्यू लो। अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। नाउ इट मेड अ न्यू हाई एंड यहाँ पे इसने एक लो बनाया, करेक्ट? इट अगेन मूव्ड अप। तो यहां तक मैं ट्रेड इसको कैरी करूंगा। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस या फिर प्रीवियस लो हिट हो गया, उसके नीचे प्राइस चला गया, सो आई विल एग्जिट माय ट्रेड। सो आप देखिए 18,000 से लेके यू कैरिड द ट्रेड टिल 23,000, जहां पे आपका एग्जिट हुआ, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन एग्जिट। सो दो चीजों से एग्जिट होता है, या तो आपका टारगेट आ गया या फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो यू वुड हैव एग्जिटेड समवेयर हियर विच वाज द प्रीवियस लो, लेकिन स्टॉप लॉस हुआ नहीं एंड द मार्केट वाज इन अ ट्रेंडिंग जोन, तो आपका 23,000 तक आपने प्रॉफिट को राइड किया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लोग ये करते हैं कि प्रॉफिट को राइड नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आगे निकल जाएंगे, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो एक इमोशनल डिसिप्लिन आपका ब्रेक हो जाता है, जहां पे आप सोचते हो कि नहीं यार, नीचे का सपोर्ट लेगा तो आई विल बाय अगेन। तो ये जो मेंटालिटी है, आई थिंक दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी टू ट्रेड, और इसी की वजह से बहुत लॉसेस होता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू शुड ऑलवेज डू दिस 3 स्टेप प्रोसेस। अगर आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ट्रेड करना है, आपको ब्रेकआउट का देखना है कि कोई एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है क्या। यू शुड सी हायर हाइस। ओके, यू शुड सी, अगर अगर ये तीनों में से दो भी अगर सेटिस्फाई हो गया, चलो मूविंग एवरेज को मैं हटा देता हूँ, इफ मोमेंटम चेक, अगर RSI is above 50 and it is making a higher high, higher lows, and there is a good pattern developing, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट। वैसे बहुत सारे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, या फिर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तो यही है, बट बहुत सारे एंट्री टेक्निक्स है, जो सब कुछ तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता हूँ। बट दिस इज द वेरी बेसिक, आई वुड से बेसिक टेक्निक ऑफ हाउ यू कैन enter in the market. Okay, so you have to keep 3 things in mind: whether there is a pattern breakout, whether there is a higher high, higher low pattern. This is for uptrend. Whether the 20-day moving average is above the 50-day, and or RSI is above 50. Okay, so अगर आपने ये 3-4 रूल्स अगर सेट कर लिया, एंड इफ यू ट्रेड एज पर दिस, देखो रोज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट? वेन एवर यू सी एन अपॉर्चुनिटी यू हैव टू ट्रेड। लोग क्या करते हैं कि नहीं, मेरे को रोज ट्रेड करना है, उसमें नुकसान होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो। सो वेन एवर देर इज अ कन्विक्शन ट्रेड, यू कैन गो फॉर इट।
नाउ एग्जैक्ट एंट्री कंडीशंस एंड एग्जैक्ट एग्जिट कंडीशंस ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है. तो अ बाय बिकम्स अ हाई प्रोबेबिलिटी बाय व्हेन द ट्रेंड स्ट्रक्चर इज हायर हाई हायर लो. पैटर्न ब्रेक हुआ है तो निफ्टी में मैंने आपको दिखा दिया. अभी नाउ लेट्स सी अनदर स्टॉक. ओके, सो लेट अस सी बीएसई. अभी अगर आप बीएसई देखोगे तो हियर वील सी बोथ, वील सी बाय एज वेल एज वील सी सेल. अगर आप देखिए तो यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था. ओके, सो देयर वाज अ रेजिस्टेंस. यहाँ पे एक बार प्राइस ने रिजेक्ट किया, यहाँ पे एक बार प्राइस ने रिजेक्ट किया, देन द मार्केट फेल. ओके, एंड यहाँ से हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी. बट आई विल नॉट गो फॉर अ बाय अंटिल इट ब्रीचेस द प्रीवियस हाई. राइट, सो इसने प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रीच किया. इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन ब्रेक. वॉल्यूम्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. वॉल्यूम अगर अगर ब्रेक के साथ वॉल्यूम आता है तो दैट अगेन इज अ वेरी गुड इंडिकेशन. आप यहाँ पे देखिए ये कैंडल बना ग्रीन, एंड लुक द वॉल्यूम. राइट, इतना अगर आप ये लेफ्ट में देखोगे तो इतना वॉल्यूम आया ही नहीं था सिंस लास्ट 3-4 months. करेक्ट, सो वॉल्यूम हैज इंक्रीज बट देयर वाज नो इंडिकेशन एंड देयर वाज नो सिग्नल. सिग्नल हमको यहाँ पे है. राइट, सो यहाँ पे आप देखिए कि प्रीवियस हाई ब्रीच किया, सो यहाँ से अप ट्रेंड आपका शुरू हो गया. द 20 डे मूविंग एवरेज इज अबव योर 60 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज. एंड इफ यू लुक एट द आरएसआई, आरएसआई आपका 50 के ऊपर है. राइट, सो ऑल योर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो यू गो फॉर अ बाय. तो आपने यहाँ पे बाय किया, प्राइस ने यहाँ पे हाई किया. इफ यू सी एक हाई किया, देन इट came down, it did not breach the previous low which was somewhere here. It went up again, it made a low, it went up. राइट, यहां तक. अभी अभी आप क्या बोलोगे कि मेरे को प्रीवियस लो ब्रीच करने का वेट करना चाहिए, बिकॉज प्रीवियस लो अगर दैट इज हियर, इफ द प्रीवियस लो इज ब्रीच्ड आई विल एग्जिट. राइट, लेकिन ये मार्केट नहीं ब्रेक नहीं किया. इट केम डाउन, वन सेक, इट केम डाउन हियर, इट अगेन मूव्ड अप, एंड देन इट ब्रोक दिस सपोर्ट. सो ये जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये सपोर्ट इसने ब्रीच किया एंड द मार्केट मूव्ड डाउन. ओके, नाउ यू कुड हैव अवॉइडेड दिस. ये जो आपका फॉल हुआ यहां तक, आप यहीं पे इसको एग्जिट कर सकते थे. One sec. आप इसको यहीं पे एग्जिट कर सकते थे. हाउ यू कुड हैव डन दैट? बाय आइडेंटिफाइंग दिस रिवर्सल पैटर्न. रिवर्सल पैटर्न क्या है? दिस इज अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न. तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपको ये लो ब्रीच होने तक का वेट करना था. यू कुड हैव इजीली एग्जिटेड हियर. जैसे ही ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, you could have exited the market. Correct, so this is one of the technique of exit. So it is not necessary. अभी आप यहाँ पे देखिए एग्जिट रूल में क्या बोलता है, बेरिश कैंडल फॉर्मेशन. तो अगर बेरिश कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया तो आई कैन एग्जिट द ट्रेड. आई डोंट नीड टू वेट फॉर द लो टू गेट ब्रीच. ओके, कभी कभी ऐसा सिग्नल नहीं आता है, देन यू वेट फॉर द लो टू ब्रेक, देन ओनली यू कैन एग्जिट. बट अगर ऐसा कोई सिग्नल, रिवर्सल सिग्नल ऊपर आ गया, जो मैं ट्रेंड रिवर्सल के पार्ट में बात करूंगा, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है. राइट, सो जो एंट्री रूल्स है वो तो मैंने आपको बता दिया. एग्जिट रूल्स, आइदर यू कैन ट्रेड, यू कैन एग्जिट ऑन अ बेरिश कैंडल फॉर्मेशन, और यू कैन एग्जिट ऑन अ ट्रेंड लाइन ब्रेक. अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर मोमेंटम अगर 40 के नीचे चला गया और कैंडल फॉर्मेशन भी हो गया तो यू कैन एग्जिट. या फिर लोअर लो पैटर्न अगर बनने शुरू हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए लोअर लो पैटर्न बनने शुरू हो गया बीएससी. राइट, so it made a low, it made a high which was below the previous high, then it made a low, it made a high which was below the previous low, previous high. ऐसे करते करते it has made a, if you see, एक lower low pattern इसमें बना हुआ है. Correct, so I will be seller here. If I am trading in derivatives, I will be a seller here, and I will be a buyer here because it was making a higher high and this is making a lower low. Right, सो ये कुछ एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट एग्जिट कंडीशंस है विच वन कैन अप्लाई इन द मार्केट. स्टॉप लॉस फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया. स्टॉप लॉस आप जो प्रीवियस लो है उसका आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और यू कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ एटीआर. एटीआर करके एक इंडिकेटर है. तो एटीआर बेसिकली क्या दिखाता है कि आपका एवरेज टू रेंज, एवरेज टू रेंज इज नथिंग बट आपका प्राइस रेंज कितना है. तो प्राइस रेंज के हिसाब से भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं.
लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको स्टॉप लॉस रखना है। यू कैनॉट कीप अ मेंटल स्टॉप लॉस, क्योंकि मेंटल स्टॉप लॉस में नॉर्मली लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। सो अगर आपने एंट्री 100 पे किया है, एग्जाम्पल, आप स्विंग लो, जो उसका जो हायर लो है वो 95 है, प्लीज मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ स्टॉप लॉस स्लाइटली बिलो दैट। ओके, 1 और 2% बिलो द स्ट्रक्चर। 95 के नीचे अगर आप रखते हो तो 94 93 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर लॉसेस कैन गेट, इट कैन मैग्नीफाई। अगर आप डिक्शन देखेंगे तो डिक्शन में आई विल शो यू, इट वाज अ वेरी गुड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप ये देखिए तो इट वाज अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड इट गॉट कंफर्म्ड ऑल्सो। ओके, सो इसका स्टॉप लॉस जो है वो जो राइट शोल्डर है उसके आसपास इसका स्टॉप लॉस आता है 15,580। करेक्ट। अगर आपने स्टॉप लॉस इसका नहीं रखा होता, ये सोच के कि अरे नहीं यार ये तो अप ट्रेंड में ये चला जाएगा ऊपर, आप देखिए ये 15,800 से इट फेल टू 12,000, सो ऑलमोस्ट 3,000 4,000 पॉइंट्स मोर फ्रॉम द स्टॉप लॉस पॉइंट, राइट। सो स्टॉप लॉस रखना बहुत बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट कीप अ स्टॉप लॉस, योर लॉसेस कैन गेट एग्रीवेटेड। एंड एक चीज याद रखिए कि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आते रहते हैं। इवन आज स्टॉप लॉस हुआ तो कल हम एक अच्छा ट्रेड देख के उसमें पैसा कमा सकते हैं। बट इफ यू don't maintain the risk management or the money management principle, there is always a possibility कि आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करें, आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट। प्रॉफिट आप बनाए नहीं बनाए, लेकिन आपका कैपिटल प्रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल अगर प्रिजर्व नहीं होगा तो आप नेक्स्ट ट्रेड कर नहीं सकते हो, करेक्ट। और ऐसे ऐसे ब्लाइंड ट्रेडिंग में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपका जो कैपिटल है वो एक दिन में वाइप ऑफ हो सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड व्हाई नॉट टू बाय, व्हेन नॉट टू बाय, बेसिकली अगर प्राइसेस काफी मूव हो चुके हैं, RSI 70 के ऊपर चला जा चुका है, शार्प ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और ब्रेकआउट्स हो रहे हैं बट विदाउट वॉल्यूम, ओके, वहां पे आपको नॉर्मली इसको अवॉइड करना है। सो इफ यू सी BSE में भी अगर आप देखेंगे तो BSE में यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन गया। सो अगर आपका कुछ बाई में नहीं था एंड इफ यू वांट टू शॉर्ट इन डेरिवेटिव्स, यू कैन वेरी वेल डू दैट विद द स्टॉप लॉस ऑफ हाई, और इसको आप राइड कर सकते हैं जब तक कि ये प्रीवियस हाई मेरा ब्रीच नहीं करता। टिल देन आई कैन गो फॉर अ शॉर्ट, बट आई कैन नॉट बाई हियर बिकॉज प्राइस मूविंग एवरेज से काफी दूर है। प्राइस में ऑलरेडी एक रन अप आ चुका है, और अगर RSI भी देखे आप तो RSI एकदम ओवरबॉट में है, इट इज अबाउट 70। सो यू शुड ऑलवेज अवॉइड सच ट्रेड्स। सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अप ट्रेंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, पैटर्न ब्रेक, अगर पैटर्न ब्रेक होता है तो डबल कंफर्मेशन है, MA अलाइनमेंट दैट इज मूविंग एवरेज, प्राइस पुल बैक टू सपोर्ट, मोमेंटम सपोर्ट्स, RSI शुड बी ग्रेटर देन 50, बुलिश कैंडल कंफर्मेशन, और स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए बिफोर यू एंटर। ओके, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और सेल आपको कहाँ करना है, अगर हायर लो ब्रेक हो गया, या बेरिश कैंडल सेटअप हो गया, या RSI ड्रॉप्स बिलो 50, या आपका टारगेट आ गया 1:2 1:3 जो भी आपने रखा है, या फिर आपका जो कैंडल है वो बिलो प्रीवियस की सपोर्ट के नीचे आ गया, तो आपको एग्जिट करना, राइट। नाउ देर आर सम गुड पैटर्न्स जो आपको काफी अच्छे ट्रेड्स देते हैं। तो अगर चार्ट पैटर्न्स देखे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, आई विल शो यू। कप एंड हैंडल ब्रेक है, राउंडिंग बेस है, देन यू हैव ट्रायंगल ब्रेक, फॉलिंग वेज ब्रेक, बुलिश फ्लैग। ये these are some of the patterns, there are n number of patterns, okay, but these are some of the high conviction patterns। मैं आपको फटाफट I'll just show you some of the patterns। You can see here, now this is something called as a inverse head and shoulder। okay, so आप देखिए यहाँ पे inverse head and shoulder कैसे बनता है। एक सो दिस इज अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, सो जहाँ पे आपका एक लेफ्ट शोल्डर बन गया, एक हेड बन गया, एक राइट शोल्डर बन गया, दिस इज अ वेरी हाई कन्विक्शन पैटर्न। ये जब भी आपको चार्ट पे दिखे ना, आपको ट्रेड 100% लेना है।
देखिए ये भी कभी कभी फॉल्स हो सकता है, समटाइम्स इट ऑल्सो रिवर्सेस, इट इज नॉट नेसेसरी कि 100 टाइम्स इट विल बी परफेक्ट, बट इसका जो कन्विक्शन लेवल है दैट इज वेरी वेरी हाई। एंड इफ यू सी इसका जो टारगेट था, टारगेट वाज, एंड दिस इज अ बिग चार्ट। नॉर्मली ये जो पैटर्न्स आपके जो पोजिशनल चार्ट्स है उस पर बहुत अच्छे चलते, so you can see the entry was somewhere around 98 and the target was around 263, and if you see ये target आ गया इसमें। so कितने टाइम में आया, it was say 1st February when the pattern unfolded, and the target was met in April 2024, so almost after 2 years। but 2 years में आपको कितना रिटर्न मिला, you just see it is 109, close to 100, and you made a profit till 260, 270, so almost 170 points up from your buying level, so it is almost 200 times, near to 200 times, right? So these are high conviction patterns. Now I would like to show a cup and handle. Cup and handle I will show you in gold, okay? So gold में आप देखिए, नाउ दिस इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर आप लोग लिंक्डइन में मेरा, इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन लिंक्डइन, आई कीप पोस्टिंग सच एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वेर इन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कप एंड हैंडल कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक कप जैसा पैटर्न बना, दैट इज राउंडिंग बेस, एंड देन अ हैंडल, दिस इज ऑल्सो राउंडिंग बेस बट अ स्मॉल राउंडिंग बेस, राइट? ये जैसे इसका ब्रेकआउट आ गया, यू सी द टारगेट वाज क्लोज टू 4100 odd, and the prices are already above that level, करेक्ट? सो इसका भी आप देखिए ये कभी आया। सो गोल्ड में लोग बोलते हैं कि अरे इतना मुंह आ गया, हमको रैली पकड़ने नहीं मिला। इफ यू वुड हैव डन इट थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, आपको पूरा गोल्ड का रैली पकड़ने मिलता था। तो इफ यू सी द ब्रेकआउट केम समवेयर नियर 2200 odd dollars, राइट? एंड इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो करीब 1600, सो इट इज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स, $600। और अगर ऊपर देखेंगे तो टारगेट वाज अराउंड 4100, almost double the where you bought, right? So 2200 in May 2024, and target in October 2025, so in 1.5 years कप एंड हैंडल का पैटर्न आ गया। सो दीज आर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हो, बट द ओनली कंडीशन इज आपका स्टॉप लॉस शुड बी फिक्स्ड। अगर आपने स्टॉप लॉस फिक्स नहीं किया और आपने आपका टारगेट, इसमें आपका टारगेट भी फिक्स हो गया, मेरा टारगेट ये है, राइट? और आप, यू कैन यूज डिफरेंट मेथड्स टू सेट द टारगेट्स आल्सो, बट यहाँ पे मेरा टारगेट ये है और मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो बोथ आर फिक्स्ड बिफोर आई ट्रेड, राइट? सो 1.5 साल में गोल्ड का मूव आपको ऑलमोस्ट 200%, फ्रॉम 2200 टू 4200, एंड दिस इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच। आपको पैटर्न देगा, आपने आपने रूल्स फॉलो किया, एंड यू आर डन। आपने, सी, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू डिफरेंट वेज, ओके? आपको डेरिवेटिव्स में ही करना है, जरूरी नहीं है। यू कैन बाई ईटीएफ। अगर आपको लग रहा है गोल्ड में तेजी आने वाली है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, करेक्ट? चार्ट आप देखो गोल्ड का, बट इन्वेस्ट इन ईटीएफ, जो मैं नॉर्मली करता हूँ। आई आइदर इन्वेस्ट इन ईटीएफ और आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। हमारे जो भी क्लाइंट्स है वो सब म्यूचुअल फंड्स में दे हैव डाइवर्सिफाइड दैट पोर्टफोलियो 15-20% इन गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाई? बिकॉज इट वाज इन अ स्ट्रक्चरल बुल रन, राइट? दिस इज अ स्ट्रक्चरल बुल रन। नाउ लेट अस कम टू सिल्वर। अभी सिल्वर में आप देखेंगे तो सिल्वर में इट इज अ, यू सी, दिस इज 40 ईयर, ये आपने मेरा लिंक्डइन में पोस्ट देखा होगा, दिस इज अ 40 ईयर कप एंड हैंडल, राइट? 40 ईयर कप एंड हैंडल जो ब्रेक हो चुका है। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि इसका अपमूव कितने हो सकता है, राइट? सो सिल्वर अगेन इज अ वेरी गुड डाइवर्सिफायर विच यू कैन allocate some bit of that, you can allocate in your portfolio. So this is how you can identify different patterns. Rounding base, not, it is nothing but this. This is the rounding base. Okay. So rounding base आपको I think, yes, you can see here. So rounding base आपको MFSL में दिख जाएगा. See, rounding base breakout, and now it is still in the up move. Okay. So ये सब patterns आप जब भी आप इसमें लगाते हो,
it gives you a very high conviction patterns. Okay, SBIN का मैं आपको दिखाता हूँ. SBIN में एक consolidation move था, and that consolidation it broke, and from there the prices have moved up. So this we can call it as a channel break. This is also one kind of pattern. अब देखिए कैसे चैनल में ट्रेड कर रहा था, जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आ गया, इट वाज अ क्लियर कट. और इसका टारगेट आप कैसे सेट करेंगे? टारगेट को आप इतना ले लो, इसका वाइडेस्ट डिस्टेंस ले लो और यहाँ पे करो. सो यू बॉट समवेयर नियर 849 एंड इट वेंट अप टिल नाउ. दिस इज ऑन अ डेली चार्ट, सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग बिग मूव. लेकिन इसमें भी आई वुड से देयर वाज आल्सो अ काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर. इफ यू सी, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर है, राइट? सो दिस इज हेड एंड शोल्डर विच इज स्टिल ऑन, right? So this way you can identify a lot of patterns on the chart, and um, you can trade. So at Arthavruksh, we coach on this only, like how you can identify the trends, how you can identify various high probability patterns which will help you in trading the markets. Okay. फिर दूसरा एक आप जो कर सकते हो लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन के लिए, यू कैन लुक एट द ब्रॉडर सेक्टर ट्रेंड. ओके, सो अगर मैंने से इफ आई वांट टू बाय बैंकिंग स्टॉक्स, तो बैंकिंग स्टॉक्स में मेरे को बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? इफ यू सी बैंक निफ्टी, इट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस, राइट? सो अभी आपको ट्रेंड समझ में आ गया है. ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपको हायर हाइज हायर लोस देखना है. हायर हाइज हायर लोस अगर आप देखेंगे तो आपको यू विल कम टू नो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड. ओके, तो अगर बैंक निफ्टी में मेरे को ट्रेंड ऊपर लग रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरे को ब्रेकआउट आया है, इफ यू सी हियर, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, तो आई विल गो फॉर अ बाय. अगर एसबीआई में मेरे को ब्रेकआउट आया है तो आई विल गो फॉर अ बाय. आपको देखना है कि वो सेक्टर का इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है. सो फॉर एग्जांपल एमएफएसएल में हमने से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया एक ब्रेकआउट. वी हैव टू सी व्हाट इज द फाइनेंशियल सर्विसेज index doing. यहाँ पे भी आप देखिए the trend is up. How the trend is up? It is making higher highs and higher lows, right? So this is another way of trading long term stocks. Okay. So आप इसमें क्या कर सकते हो? You can pick the leading stocks out of that index. जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा था या एसबीआई था. अलाइन विद द ट्रेंड सेटअप, वो स्टॉक का ट्रेंड सेटअप देखिए कैसा है, एंड देन होल्ड इट विद कॉन्फिडेंस. जब तक आपका रूल्स ब्रीच नहीं होता तब तक आप उसको होल्ड करके रखिए. छोटा मोटा ऊपर नीचे होता रहेगा, मार्केट है. यू माइट डेली बेसिस पे यू माइट सी प्राइजेस गोइंग अप एंड डाउन, बट दैट शुड नॉट इम्पैक्ट योर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. अगर आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज इंटैक्ट, आप उसमें कंटिन्यू बने रह सकते, राइट? ट्रेंड रिवर्सल क्या क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर्स में देर आर फ्यू इंडिकेटर्स दैट आई नॉर्मली फॉलो. एक तो आरएसआई डाइवर्जेंस है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, दिस वर्क्स ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ टाइम्स. ओके, सो आई विल शो यू इन एसबीआई ओनली. एसबीआई में एक यहाँ पे देखिए आप. सो इफ यू सी हियर, आरएसआई डाइवर्जेंस कभी होता है जब भी प्राइस हायर हाई बना रहे और आपका आरएसआई जो है वो आपका हायर हाई नहीं बना रहा है. ओके, नाउ दिस इज अ सिग्नल दैट द प्राइसेस माइट कम डाउन बिकॉज मोमेंटम फेड हो रहा है. सो यहाँ पे देखिए, प्राइस वाज मेकिंग हायर हाई बट आरएसआई इज नॉट मेकिंग हायर हाई. दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट मार्केट माइट गो डाउन. ओके, और आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे कुछ आपको कैंडल स्टिक के हिसाब से कुछ कंफर्मेशन मिला है क्या. यू कैन एग्जिट इफ यू होल्ड अ लॉन्ग पोजीशन. अगर आपको शॉर्ट करना है, यू कैन ऑल्सो शॉर्ट विद दिस काइंड ऑफ अ सिग्नल. और सिमिलरली यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस. पॉजिटिव डाइवर्जेंस में क्या होता है? I need to see whether I have a positive divergence. Um, check. Yes. See here. So this is the stock. This is the chart of Dixon. Okay. Dixon में आप देखिए, प्राइस वाज मेकिंग लोअर लोस, राइट? प्राइस वाज मेकिंग लोअर लोस, बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो प्राइस ने एक लो बनाया, आरएसआई ने एक लो बनाया,
उसके बाद जो प्राइस ने लो बनाया, आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, राइट? सो दिस इज अ क्लियर क्लियर डाइवर्जेंट सिग्नल। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई भी सिग्नल मिला। और इसके साथ आप देखिए, यहाँ पे कैंडल स्टिक का मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था। दिस गिव्स यू अ एडेड कंफर्मेशन, सो यू कैन गो फॉर अ बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ द स्विंग लो। ओके, अब देखिए यहाँ से 2009 से द प्राइसेस वेंट अप टिल 2900, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल यूजिंग आरएसआई डाइवर्जेंस। क्योंकि ट्रेंड नीचे था और यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख गया, यू बॉट, यू वेंट अगेंस्ट द, ये जो ट्रेंड था इसके अगेंस्ट आप चले गए, क्योंकि देयर वाज अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, राइट? देन ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ये ट्रेंड लाइन से, दिस इज अ ट्रेंड लाइन। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मेरे को मेरा जो फॉलिंग, ये एक चैनल भी बन जाता है, ये फॉलिंग चैनल है। सो फॉलिंग चैनल से मार्केट निकल गया ऊपर, तो आई एम एग्जिटिंग माई ट्रेड इफ आई एम शॉर्ट एंड आई एम कमिंग इनटू फ्रेश लॉन्ग। तो आपको चेंज बहुत जल्दी होना है। ओके, सो यू कैनॉट स्टिक टू द ट्रेड इवन इफ चार्ट में आपको रिवर्सल दिख रहा है। रिवर्सल अगर आपको दिख गया तो यू हैव टू चेंज वेरी स्विफ्टली, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। देन यू हैव अ स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब यहाँ पे आप देखिए तो हायर हाई बन रहा था, यहाँ पे देखे तो लोअर हाई बन रहा है और हायर लो बन लोअर लो बन रहा है, राइट? सो दिस इज अगेन अ इंडिकेशन दैट द ट्रेंड इज चेंजिंग, सो इट इज बेटर टू एग्जिट। यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग भी बना था, सो दैट गिव यू अ लीडिंग इंडिकेटर एंड देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, करेक्ट? कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, और ये आपको काफी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल्स बताते हैं। सो इफ यू लुक एट द कैंडलस्टिक पैटर्न, एक तो मैंने आपको बता दिया बेरिश एंगल्फिंग। सो बेरिश एंगल्फिंग अगर टॉप, एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप या तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आता है, दैट विल बी मोर रिलायबल रादर देन कहीं पर भी बीच में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखिए बेरिश एंगल्फिंग का कैंडल जो है वो टॉप पे बना, दिस इज अ वेरी गुड रिवर्सल सिग्नल। आप यहाँ पे या तो शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका अगर ये ब्रेकआउट में आपने ट्रेड लिया तो आप एग्जिट कर सकते हैं। देन हियर यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार। सो जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आरएसआई ने, आरएसआई इज नॉट मेड लोअर लो एंड प्राइस हैज मेड अ लोअर लो, सो दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, देयर आर थ्री कैंडल्स। सो एक कैंडल रेड बनेगा, उसके बाद जो कैंडल है वो एक स्टार जैसे बनेगा, इनडिसिसिव कैंडल। उसके बाद जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगा। ओके, एंड वो जो पैटर्न है उसके ऊपर जैसे प्राइस जाता है, यू कैन गो फॉर अ बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ द लो, इसका जो लो है पैटर्न। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखना है कि ये जो रेड कैंडल है इसका जो क्लोज है उसके नीचे ये कैंडल ओपन होना चाहिए, इसका जो क्लोज है इसके ऊपर ये कैंडल ओपन होना चाहिए। दीज आर द रूल्स। ओके, नाउ आई कैनॉट गो वेरी डीप इनटू दिस बिकॉज टाइम कम है, बट दिस इज हाउ मॉर्निंग स्टार कैंडल इज स्ट्रक्चर्ड। और यही अगर ऊपर बनता है, यही अगर ऊपर यहाँ पे बन गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ, दिस बिकम्स अ इवनिंग स्टार, और वो रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल है, ऊपर से मार्केट नीचे आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज अ मॉर्निंग स्टार एंड यू सी हाउ इट वेंट अप, इसकी इधर आपको और कंफर्मेशन मिल गया, एंड फ्रॉम 2100 ऑड इट वेंट अप टिल 2946। ओके, देन वैसे ही यू हैव डार्क क्लाउड कवर, जहाँ पे आपको ऊपर में एक सिग्नल मिल जाता है। यू हैव शूटिंग स्टार, यू हैव हैमर, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है विच यू कैन यूज फॉर टेकिंग अ ट्रेंड। ये देखो हैमर यहाँ पे बना है, जस्ट शो यू। सो दिस इज अ हैमर। हैमर मतलब कि आपका जो बॉडी है दैट विल बी वेरी स्मॉल। जो बॉडी मीन्स ये जो बीच में जो डार्क ग्रीन दिख रहा है, और ये जो विक है उसका जो डंडी है यहाँ पे, दैट इज दैट विल बी वेरी बिग। सो आपका जो बॉडी है दैट शुड बी, जो विक है नीचे का, दैट शुड बी 3 टाइम्स योर बॉडी, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ हैमर। हैमर क्यों, वो हथौड़ी जैसा दिखता है। ओके, सो हैमर मतलब प्राइस वेंट डाउन बट देन बुल्स हैव पुल्ड इट अप, राइट? सो दिस इज अ रिवर्सल सिग्नल। तो जैसे ही इसके ऊपर प्राइस क्लोज दे देता है, यू कैन गो फॉर अ बाय। आप दूसरे सिग्नल्स भी देख सकते हो, यू कैन सी आरएसआई इज अबव 50, ये भी ऊपर ही है, तो आप इसमें बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल का लो। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अ हैमर कैंडलस्टिक्स। देन यू कैन गो फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक मैंने आपको डिक्शन में दिखा दिया अभी।
डिक्सन में एक चैनल बना था, डिक्सन नहीं सॉरी बीएससी में ये चैनल बना था, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द सपोर्ट। अगर ये ब्रीच कर दिया तो प्राइसेस माइट गो डाउन, अगर ये ब्रीच कर दिया तो प्राइसेस माइट गो अप। सो दिस इज अ रिवर्सल। तो प्राइस, अगर मैं अपसाइड रिवर्सल देखता हूं तो प्राइस वाज कमिंग डाउन एंड इट ब्रोक दिस चैनल एंड द प्राइसेस वेंट अप, राइट? एंड द प्राइसेस वेंट अप एंड we have seen a trend reversal. So this is how the trend reversal happens if you use support and resistance. So these are few of the trend reversal indicators which one can use while trading. फॉल्स ब्रेकआउट में मेरा जो एक्सपीरियंस है एंड द वे आई हैव सीन फॉल्स ब्रेकआउट हैपनिंग इज, अगर आप सब्जेक्टिव जाओ, अगर आप बुक्स में देखो ना, तो बुक्स में क्या बताते हैं कि कोई भी कैंडल अगर अभी जैसे ये ब्रेकआउट है, सो वंस इट ब्रेक्स दिस लाइन यू हैव टू बाय, ओके? बट माय एक्सपीरियंस इज दैट ये कैंडल ब्रेक होने के बाद जो दूसरा कैंडल बनता है वो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। दैट गिव्स यू अ एडेड कन्विक्शन। ओके, नाउ आई विल शो यू गोल्ड का चार्ट विच विल एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट आई मेंट बाय क्लोजिंग। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था एंड ये कैंडल ब्रेक कर दिया लाइन को, करेक्ट? सो एज पर सब्जेक्टिव आई वुड गो बाय हियर बिकॉज उसने ब्रेक कर दिया, राइट? बट उसके बाद आप देखिए फ्रॉम 2000 3430 इट वेंट डाउन टिल 3270, ऑलमोस्ट $200 का फॉल, करेक्ट? लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैंडल ने फिर ब्रेक किया ये लाइन को, बट देन द नेक्स्ट कैंडल अगेन was a bullish candle. So this is a high conviction breakout. Okay. So false breakout में मैंने एक देखा है, patience is a key. जैसे ही ब्रेक कर दिया, वेट फॉर दैट कैंडल टू ब्रेक, कोई भी टाइम फ्रेम, वेट फॉर दैट कैंडल टू ब्रेक। ब्रेक होने के बाद दूसरा जो कैंडल है दैट शुड क्लोज अबाउट दिस। इफ दैट हैपेंस देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी द ब्रेकआउट विल सस्टेन, अदरवाइज फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड दिस यू विल एनकाउंटर इन मोस्ट ऑफ योर ब्रेकआउट्स। ओके, जब भी आप देखिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई किया है ऐसे, सो यू विल गेट लॉट ऑफ सच ब्रेकआउट जो ब्रेक हुआ एंड देन द नेक्स्ट कैंडल वाज डाउन। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट, ओके, यू शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन। प्राइस स्ट्रक्चर, फिर देर आर डिफरेंट फॉल्स ब्रेकआउट, जैसे कि अगर ब्रेकआउट दिया बट कन्फर्म वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है, दैट ऑल्सो कैन टर्न आउट टू बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। प्राइस स्ट्रक्चर बिफोर ब्रेकआउट अगर सपोज देर इज अ टाइट कंसोलिडेशन, अभी आप यहाँ पे देखिए एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ था, राइट? इफ यू सी दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्राइंगल, ओके? सो ये ट्राइंगल ब्रेकआउट है। सो एक टाइट, सो कंसोलिडेशन मतलब एक कॉइल के जैसे, आप स्प्रिंग को लीजिए, स्प्रिंग को आप एकदम दबाइए, जितना आप दबाओगे स्प्रिंग को उतना जोर से स्प्रिंग ऊपर जाएगा, राइट? सो ये भी ऐसे ही है, इट इट कीप्स ऑन कंसोलिडेटिंग, एकदम टाइट कंसोलिडेशन होता है एंड देन सडन ब्रेकआउट होता है। सो यू कैन सी हियर हाउ इट कंसोलिडेटेड एंड देन इट गेव अ सडन ब्रेकआउट, राइट? सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर ऐसे ही सडनली एक प्राइस ऊपर गया तो देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ब्रेकआउट विल नॉट sustain. Okay, so there are n number of examples which can be shown, but due to time limitations I can't show you all the examples. Then you have retest behavior. Retest मतलब क्या है कि प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस यहाँ पे फिर से आया एंड देन इट वेंट अप। सो अगर प्राइस यहाँ पे आके यहाँ से घूम जाता है, देन वी कैन टेक इट एज अ राइट ब्रेकआउट। अगर इसके नीचे चला गया ये, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ब्रेकआउट विल नॉट सस्टेन। ओके, so these are some of the indicators that you can use to identify whether the breakout is a right breakout or a false breakout. Okay, then how to use the different time frames. Now this is very very important, क्योंकि क्या होता है, मेरे को बहुत बारी मेरे या तो मेरे क्लाइंट्स या मेरे स्टूडेंट्स दे आस्क मी कि अगर मेरे को इंट्राडे ट्रेड करना है तो कैन आई लुक एट द डेली चार्ट और कैन आई लुक एट द वीकली चार्ट? That is very wrong. Okay, so these are certain rules that you have to follow when you are looking at different time frames. अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो यू स्टार्ट विद 1 आवर। 1 आवर में आपको ट्रेंड देखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हायर हाइस हायर लोस या फिर लोअर हाइस एंड लोअर लोस। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है कि ट्रेंड नेगेटिव है? देन गो टू 15 मिनट चार्ट, जहाँ पे आपको सेटअप एंड स्ट्रक्चर देखना है। ओके, और एंट्री के लिए आप 5 मिनट या 10 मिनट, इवन 15 मिनट में एंट्री ले सकते हो।
बिकॉज माई एक्सपीरियंस अगेन सेज 5 मिनट में बहुत सारे विपसॉस होने के चांसेस हैं, बट 15 मिनट चार्ट पे अगर आपने कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, 1 आवर चार्ट पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया एंड 15 मिनट चार्ट पे आपने एंट्री लिया, ओके, दैट इज मोर बेटर देन गोइंग फॉर 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट इज ओके फॉर स्कैल्पिंग, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट, बट 1 आवर और हाफ एन आवर एंड 15 मिनट्स इज गुड फॉर इंट्राडे ट्रेड। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप सेटअप देखो, उसमें पैटर्न्स आ रहे हैं, उसमें कैंडल स्टिक फॉर्मेशन आ रहा है, जो भी मैंने आपको अभी तक दिखाया, अगर वो 15 मिनट चार्ट पे बन रहा है, दैट विल बिकम एन इंट्राडे ट्रेड। ओके, क्योंकि ये जो कप एंड हैंडल, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न जो है ये इंट्राडे चार्ट पे भी बनते हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग मतलब 2 से 10 दिन का होल्ड। 2 से 10 दिन के होल्ड में क्या होता है कि यू नॉर्मली व्हाट यू डू इज यू लुक एट द डेली चार्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके बाद यू लुक एट 2 और 4 आवर का चार्ट फॉर एंट्री जोन्स एंड पुलबैक्स, एंड देन यू गो फॉर, यू ऑल्सो लुक एट द वीकली चार्ट टू लुक एट द सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। पोजिशनल के लिए यू लुक एट द डेली चार्ट एंड यू लुक एट द वीकली चार्ट। आपका जो देखने का तरीका है वो सेम रहेगा, एंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यू कैन लुक एट द मंथली चार्ट। ओके, so now coming to the last slide, where the traders make different mistakes. Even I do some of the mistakes which are listed here. But after so many years of experience, the mistakes have drastically gone down. But ये एक market है, and human emotions से you tend to make a lot of mistakes. But the top mistakes I have put here, one is trading without a clear plan. Okay, आपका एक जर्नल होना चाहिए जिसके अंदर आपको पूरा प्लानिंग करना चाहिए, आपको सब कुछ उसमें डालना चाहिए कि आप क्या देख के एंट्री ले रहे हो, एग्जिट ले रहे हो, एवरीथिंग, सो दैट यू कैन रेक्टिफाई योर सेल्फ व्हेन यू लुक बैक एट योर ट्रेडिंग पैटर्न। रिस्किंग टू मच ऑन वन ट्रेड, एक अगर सपोज इफ यू हैव कैपिटल ऑफ 1 लाख, यू कैनॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? सो आपको उसको तोड़ के अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, राइट? चेजिंग ट्रेड्स, फोमो, दिस इज वेरी डेंजरस। अगर ग्रीड आ गया मार्केट में, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू वेट, जब तक कि आपको एक स्टेबल मार्केट स्टेबल नहीं होता, तब तक यू हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। पुल बैक आ गया, यू कैन ट्रेड, बट फोमो के लिए यू शुड ऑलवेज अवॉइड। अपॉर्चुनिटी रोज आता है मार्केट, ओके, आई हैव सीन 20 ईयर्स में, मैंने देखा है कि मेरे को रोज अपॉर्चुनिटी मिलता है मार्केट में। एक अपॉर्चुनिटी गया, दैट डजंट मीन माय एंटायर ट्रेडिंग जर्नी इज गॉन, राइट? ओवर ट्रेडिंग, वेरी डेंजरस। ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड कि मेरा 1 लाख का कैपिटल है, उसमें मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। आज मेरा इतना लॉस हो गया, आई एम आउट ऑफ द मार्केट फॉर टुडे, आई विल नॉट ट्रेड एनी मोर फॉर दैट डे। ओके, लेटिंग लॉसेस रन, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो मैंने आपको डिक्शन में दिखाया। आपको स्टॉप लॉस रखना है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो वो एक खाली होप है कि ये ऊपर आएगा, बट यू आर कंटिन्यूसली लूजिंग, स्पेशली इन डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स में योर कैपिटल कैन गेट वाइप्ड ऑफ। ओके, इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड, ये मैंने शुरू में बता दिया था। इमोशनल डिसीजन मेकिंग, ये होगा, ये इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल टेक इमोशनल डिसीजंस, बट प्रैक्टिस से क्या होगा और डिसिप्लिन से क्या होगा कि आपका इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो काफी हद तक कम हो जाए। ओके, so this is all what I wanted to convey to the participants. बहुत fast था because the time was very less. But इसमें if you go deep into all this parameters that I have shown, and if you practice it, मुझे लगता है कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है, आई थिंक दैट विल गेट मोर सिंप्लीफाइड, एंड आई थिंक यू कैन ट्रेड विद मोर इन्फॉर्म डिसीजन रादर देन जस्ट ब्लाइंडली किसी ने भी बोल दिया, या फिर मेरे को ठीक लगा, मार्केट ट्रेड, बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ। आई थिंक दैट इज द रॉन्ग वे टू ट्रेड, बिकॉज इट इज योर मनी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट by taking knowledge and then putting your money into right investments. So this is my contact information. So if you need any kind of mentoring or coaching support, you can call me, you can mail me. We also have a Telegram channel where we are not a SEBI registered advisor, so we are not putting anything related to stock. We are just putting index views, which is allowed by SEBI. So उसमें आपको सिर्फ index views मिलेंगे as of now. यू कैन ज्वाइन माय चैनल, एंड उसमें आपको काफी सारे इंफॉर्मेशन, काफी एजुकेशनल इनपुट्स मिलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड थैंक यू हरी अगेन फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। Thank you, Ravindra ji. It was really a very insightful sessions. Obviously, as a
being a market professional and into the markets from past 15 years, still I got to learn a lot from what you have said. And I'm sure जितने भी participants join किए, they have been very much helpful with what are the content which you have given. And the best part was like कि आपने actually वो बता दिया participant को that mistakes which they don't have to do. Everyone is in the market to learn कि what's new which they can learn. But mistakes जो which you have highlighted is something great. And more to that is basically आपने जितना भी बताया that's a knowledge part of it. With a knowledge, you also need a right partner. So obviously a right terminal which is Ashika and a Dhanush, which we also have a trading platform which would be helping the participants to actually invest in the market in the right way. And the best part is like a knowledge partner होना ज़्यादा ज़रूरी है, where they can learn something new and they can minimize their risk, as you rightly said, sir. Right. And I would encourage and ask participants if you have any questions, they can write back to us. And if you want such more for insightful sessions, I would definitely request Ravindraji's time for more such webinars where we can go in depth for technical analysis. Thank you, participants. Thank you, Ravindraji, for your time. Thank you. Thank you, Arun. Thank you. Thank you very much. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.